So, stärken Sie im Herbst Ihr Immunsystem. Immunsystem brauchen wir eigentlich immer. So, hier habt ihr das schon gelesen. Was liest man? Worum geht es? What it is all about? Tipps für neu. Die Gesundheit im Herbst und im Winter. Also 2. Ja. Das ist richtig. Klar. Im Herbst und Winter. Das Foto kann man auch. Also beide Fotos. Sie haben Schnupfen. Sie haben Erkältung. Schnupfen, Erkältung. जुकाम हो गया इन दोनों को. Im Herbst. Herbst is November. Ja, richtig. So Oktober, November in Deutschland. Also im Herbst gibt es auch Regen. जर्मनी में नवंबर में बारिश होती है, खूब ठंडी हवाएं चलती है. सो ये मौसम बड़ा रिस्की है. So stärken Sie im Herbst Immunsystem. Falsche Kleidung bei Regen, Schnee und Kälte und am nächsten Tag tun Hals und Kopf weh. Weh tun मतलब पेन हो गया, दर्द करता है. Yes. Nächsten Tag. If you wear wrong clothes मतलब कभी कभी कोई बोलता है कि मौसम खराब है. मौसम तो ठीक ही है, अपने कपड़े शायद खराब है. मतलब अकॉर्डिंग टू दैट वेदर वो नहीं है शायद, इसलिए हमको खराब लगता है. सो falsche Kleidung, आप गलत कपड़े पहनो अगर मौसम में, अकॉर्डिंग टू वेदर नहीं पहनो तो am nächsten Tag tut Hals und Kopf weh. Husten, ja, Sie haben eine Erkältung. In dieser Jahreszeit nehmen Erkältungen zu. Zunehmen means increase. In this season, Jahreszeit is season. In this season, Erkältungen nehmen zu. मतलब जुकाम के केस बढ़ जाते हैं. Hier unsere Tipps für Sie. Some tips. Sport und Bewegung trainieren Sie das Immunsystem. Sport und Bewegung trainieren. मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट, घूमना फिरना, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. Gehen Sie viel spazieren und joggen Sie. Go for walk and jogging or jogging auch im Winter natürlich. Duschen Sie abwechselnd, heiß und kalt oder gehen Sie in die Sauna. सब करो जो कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए. स्टीम बाथ लो, गरम ठंडे से नहाओ. Kein und dann besonders wichtig, kein Stress. स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, नहीं तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा. Machen Sie Gymnastik, Yoga oder Tai Chi. Diese Aktivitäten und tanken Sie Energie और खूब एनर्जी लो. खाओ पियो मस्त रहो एक्सरसाइज करने के साथ. Vergessen Sie nicht, viel zu trinken. Drink a lot. Am besten Tee, Mineralwasser und frischen Orangensaft. ये फॉर एग्जाम्पल ये पीने के लिए कह रहे हैं और कुछ पीने के लिए नहीं कह रहे, इन्होंने एक्सप्लेन किया है. ये मेन तो Essen Sie in Ruhe and take time. खाते टाइम पे जल्दी जल्दी मत खाओ, टाइम लो आराम से. Essen Sie in Ruhe, eat in peace. Am besten viel Obst und Gemüse, और खाने में भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये खूब लो. ब्रोट, नूडल und Kartoffeln machen gute Laune. मे बी ये आपका मूड ठीक करते हैं. नूडल, ब्रोट, ठीक है वो भी. Essen Sie zweimal pro Woche Fisch. Twice a week. वीक में 2 बार फिश खाओ. एंड वेनिश फ्लाइस और मीट खाओ कम. ये अपने लिए नहीं है कहीं आप शुरू कर दो फिश खाना, मीट खाना. ये जर्मनी के हिसाब से है ना. आप तो जो खाते हो वही खाना है आपको. So bleiben Sie auch im Herbst und Winter gesund und fit. If you follow this, then definitely in winter also you will stay fit. Ja, das war es. Klar, was war next? Okay. Nächster Hausaufgabe. Nur eins. Hatten Sie noch? 22 kommt noch keiner. Seite 220. 220 auch.
ये टेक्स्ट अपने हिसाब से तीनों का बनाने के लिए दिया था। यस, आपने डायलॉग बनाए, एक बार रीड करके बताओ विकास, ट्राई, आई हेल्प यू। सर मैंने तो मेरा अलग से बनाया था एक, इनके भी बनाए थे लेकिन मैंने एक अलग से बनाया था। इनको बोलो पहले तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे ना, इसको बोलो पहले जो दिया था वो। हम्म, हाँ सर जी। या Guten Tag, Venkat. Was fällt Ihnen denn? was fällt Ihnen denn? Okay. Ich fühle sich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Habe mich nicht gut. Ich habe seit 5 Tagen Halsschmerzen. Ja, also ich fühle mich nicht gut. I'm not feeling good. Ich habe seit 5 Tagen Halsschmerzen. Schmerzen. Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Halsschmerzen. Okay. गले में दर्द। Ich schreibe Sie 3 Tagen krank. Herr Volkert, müssen Sie ausführen und darf nicht mit der Firma telefonieren. बस सर इतना ही बनाया कि उसको मना किया था कि तुम कॉल मत करना और मत करना मत करो, और मैं तो 3 दिन नया लिखे हुए देती हूँ मेडिकल। ओके, इसको दवाई और देनी है। आप बोलो ich schreibe Ihnen ein Rezept, nehmen Sie die Tabletten dreimal vor dem Essen. dreimal am Tag, दिन में 3 बार। ओके, nach dem Essen, vor dem Essen, okay. Ja, klar. Und noch eins, एक और रीड कर दो। Guten Tag, Herr Yadav. Was fällt Ihnen denn? Ich fühle mich nicht gut. Ich habe seit 5 Tagen Fieber. Fieber. Meine Bauch tut weh und ich habe Bauchschmerzen. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Nehmen Sie die Tabletten dreimal am Tag vor dem Essen. Wann darf ich wieder Sport machen? Sie dürfen nicht Sport machen. Ich brauche einen Kranken. इसको क्या बोलते थे? Ich brauche einen Krankmeldung. zu meinem Arbeitgeber. Ja, Krankmeldung. Ja. Ich schreibe 4 Tage krank. Okay, ich schreibe Ihnen 4 Tage krank. Okay. Bleiben Sie im Bett. Ich schreibe Sie 4 Tage krank. Ja. Okay. Klar. Bleiben Sie im Bett. Gautam, hast du auch geschrieben? Gautam? Manish? Yes, sir. Bitte schon. Let's die Dialoge. फिर फोटो भी शेयर करनी है ग्रुप में। जस्ट आपने क्या लिखा है बोल के बताएं। बोल के बताओ कुछ लिखा है तो। Haben Sie auch Rücken, Schmerzen? Mein Arm tut weh. Wann Sie Medikamente nehmen?
Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Nehmen Sie die dreimal am Tag vor dem Essen. Wann da diese Wetter Sport machen, wie lange muss ich im Bett bleiben? Okay. Erst. Wir dürfen nicht, Mhm. wir dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Ich brauche eine Krankmeldung für meinen Arbeitgeber. ओके सो ये जब ये बोलेंगे कि मैं आपको टैबलेट देता हूं, उसके बाद में ये क्वेश्चन बनेगा वन मोसिस दी टैबलेट है नेमन। पहले ये दवाई देंगे, फिर आप बोलोगे कि हाउ ऑफन, वी ऑफ्ट, कब कब लेनी है। ऐसे ही पहले ये बोलेगा इश ब्राउक है क्रांक मेल्डुंग फ्यूर माइनन अर्बाइटगेबर, और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर आएगा ब्लाइबन जी इम बैट इश राइब इनन। या ये समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अब तो आ गया। ये दवाई दे रहे हैं, उसके बाद में वो पूछेंगे कि हाउ ऑफन आई शुड टेक। दवाई देंगे, हाउ ऑफन आई शुड टेक, तो ड्राइमाल आम टाग, फिर इनका जवाब इश राइबे आई रिसेप्ट, ये बोलेंगे कब कब लेनी है, फिर ये जवाब देंगे। ये दो चीज है ये, नेमन जी दी टैबलेटन ड्राइमाल आम टाग। क्लार, क्योंकि इन्होंने दवाई लिखी तो वो पूछेंगे कि दवाई कैसे लेनी है, कब लेनी है, तो उसका जवाब है कि 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, वो उसका जवाब है। फिर इन्होंने बोला कि मुझे मेरे ऑफिस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लिख देता हूं आपको ड्राइट आगे क्रांक, तो ये उसका हो गया। ओके नेक्स्ट है परजोन। गौतम has to geschrieben. Gautam, Ramotar, Yes, sir. bitte schon. Guten Tag, Frau Berien. Was fällt Ihnen? Was fällt Ihnen? Es Mhm. geht es nicht gut. Es geht es nicht gut. Es geht es nicht gut. Es geht mir nicht gut, या फिर mir geht es nicht gut। डाटिव होगा ना es geht। Yes, sir. या Ja. ओके। Ich habe seit einen Wohn schnuppern. Ich habe Seit seit einer einer Woche Woche Schnupfen, Schnupfen, und Husten. Husten, okay। Der Arzt verschreibt Hustensaft. नो फिर आप ये, इसने बोला ना कि मुझे ये जुकाम लगी हुई है और फीवर है, तो डॉक्टर बोलेगा इश राइब है। Ich schreibe einen Rezept. आइनन नहीं, इनन, Ihnen, ich schreibe Ihnen ein Rezept. आइन रेसेप्ट। ऊपर वाला और इसको लेके करना था क्या पूरा ही? डायलॉग बनाना है ना, कि वो डॉक्टर से बात ही तो कर रहे हैं इस पर हम लोग, जैसे मैंने ऊपर के अकॉर्डिंग बना दिया, फिर उसको देख के। नहीं उनके उसके देख के ही बनाना था, लेकिन उसको समझेंगे वो तो एक सिचुएशन है। फिर यहाँ पे कुल मिला के हम लोग पिंग पोंग ही तो खेलेंगे कि डॉक्टर पूछेगा वही क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट बोलेगा साहब जुकाम लग रही है, बुखार हो रही है, तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा आ करो जागन जी आ, फिर ये बताएगा गला खराब है, या फिर जी haben Erkältung kein Problem ich schreibe Ihnen ein Rezept, आपको दवा लिख देता हूं। उससे बात करेगा तो वो बोलेगा कि कब लेनी है दवाई, या फिर वो बोलेगा कि मैं स्मोकिंग कर सकता हूं क्या, मैं तो, या फिर डॉक्टर पूछेगा आप स्मोकिंग करते हो, या also Sie sollten jetzt also eine Woche mindestens ja nicht rauchen, oder वो बताएगा कि 1 वीक दवाई लो, जब तक तो मत करो एटलीस्ट। तो मेरे जो
नीचे आपने बताया नहीं ये डॉक्टर और पेशेंट के लिए, इसमें से ना लेके मैंने ऊपर के तीनों डायलॉग मन से बना दिए सर। वो तो सिचुएशंस दे रखी हैं, इनसे लेना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है सर, जाके वापस से ट्राई करो। यस, ओके गौतम, hast du was geschrieben? Gautam, schläfst du? Okay, er ist nicht da. Alles klar. Vikas, du kannst noch einmal weiter. या सर मैंने एक वो बनाया था, एक अपॉइंटमेंट के लिए बनाया था। Guten Tag, mein Name ist Vikas Yadav. Ich habe einen Termin. Morgen, Herr Yadav, waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte. Hier bitte Muss es. Ja, muss es warten. Ja, aber nicht lang. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Die Ärztin kommt gleich. Ja, richtig. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Okay, wo war es? Ja, Hier. die Ärztin kommt gleich. Klar. Guten Morgen. Ich. बस तक इनके तो सबके केस बनाए थे। वो एक आगे वो भी था ना, फोन वाला डालो तो लेटर वाला। Entschuldigung. Ja. Okay. Versuch mal. Was noch? हो गया Moment. Auch. Imperativ machen wir. Ja, aber schwer. Das haben Sie gemacht? या सर इसमें एक ही बनाया था मैंने, पॉजिटिव का नेगेटिव का नहीं बनाया। ओके, इसका आंसर हाँ सर। आंसर दिया होगा तो बोल दो उसको। सर इसमें लेकिन नाम तो नहीं दे रखा है, इसका दूसरे वाले का जो ये लिखने वाला है ना उसी का दे रखा है। दोनों का दे रखा है। ये नहीं है इधर, तो ये नहीं को लिखा है और पियोत्र ने लिखा है। अब ये नहीं लिखेगी। हाँ तो लीबर नहीं, लीबर होगा फिर, लीबर प्रोट या फिर हालो, हालो पियोत्र। Hallo Peter, ich denke offen nicht. Ich mag dich auch. Ein Morgen ohne dich ist grau. Deine Augen पॉजिटिव भी लिखा है ना, पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है तो आपको लीबर लिखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लिखा है तो आपके आप में फीलिंग है उसको लेके, तो डियर लिखोगे फिर आप लीबर। ओके, लीबर पियोत्र। ओके, Ich denke offen dich. एक इश डेंके Offen dich. ऑफ्टन नहीं, ऑफ्ट आन डिश। Oft an dich. या दिस इज सेपरेट वर्ड प्रीपोजिशन ना। इश डेंके ऑफ्ट आन डिश। ओके, An dich. Ich mag dich auch. Ein Morgen ohne dich ist grau. Deine Augen sind wunderschön. Ich möchte dich auch kennenlernen. Ich führe auch heute Abend. Ich freue mich auf heute Abend. Ja, richtig, gut. So kann man schreiben. Und last में कोई लिवर पीले लिवर ग्रोशे या दाइने दाइने, दाइने ये ना ये ना था क्या उसका नाम? ये नहीं ये नहीं। ओके, दाइने ये नहीं। ये नहीं। सो यहां पे आपकी बार लीवर हो जाएगा, बिकॉज ये मेल है, लड़का है, और यहां पे दाइने हो जाएगा बिकॉज ये लिखने वाली लड़की है। या ओके, नेक्स्ट, wer hat noch geschrieben?
मनीष ये सर hast du was geschrieben? कुछ लिखा है? सर इसमें कुछ नहीं लिखा सर। Okay, was ist next dann? Das, सर लिखा ही ना। okay, gut. Das sind dann nochmals, also das ist Audio, aber was ist Kopf? Head. Augen, आंखें. Eyes, Ohren, कान. Ears, ja, Beine, टांग. okay, Füße, पैर. Arme, Po is neu, Po is hip, der Po, der Bauch, बाउपेट. Pet, Stomach, Bauch und Magen, der Rücken, Back, Pit, Finger, Schultern, उंगली. शोल्डर खांदा सर yes, plural है ये सब plural. Die Knie, die Hände, बॉडी. हाँ या नी का मतलब घुटना है, वो किन होता है, घुटना यस, चिन होता है किन. Und hier Verben und Nomen, das Kombination. Und nochmals, bevor das, können Sie sagen, was ist das? नाके. Nase, hier ist Auge, okay, das sind Haare. Hier Finger. Und das hier? डाउन. Okay. Und Hals, Schulter. Okay. Und das ist Brust. Und Stomach? Bauch eigentlich. Ja? Bauch. Und hier Nabel. सुंडी जो होती है, नाभि, नाबल बोलते हैं उसको. ऐसे ही फूस, हाथ हाथ is hand, and plural will be hände. Klar. Ear will be, और H silent रहता है बीच में, और या माउथ इज मुंड. एंड फेस को क्या बोलेंगे, पूरे फेस को? Gesicht. Das Gesicht. Klar. Pete, back. Rücken. या क्लार. नाखून को बोलते हैं नागल. नागल. या रिस्ट, हिप के लिए फो वर्ड आया था. किल भी है नागल. नाखून का चेक कर लो. Und dann kombinieren wir. Dann kombinieren wir diese Wörter. Klar? Here. Star. सेम है ना? इसके ऊपर umlaut है, सभी के ऊपर. umlaut तो प्लूरल के लिए होगा. अब ये तो सर नहीं. प्लूरल के लिए होगा. Starke Muskeln. Muskeln means muscles. These are the nouns and these are the verbs. So we have to combine them. Starke Muskeln. Augen und Ohren. Arm, Körper, Bein. कौन सा आपस में मैच करेगा, ये देखना है आपको. या देखो कौन सा आपके हिसाब से मैच करना चाहिए. मुस्कुलन ट्रेनियरन आना चाहिए, बिल्कुल सही. या öffnen, yes. Augen und Ohren. öffnen, Muskeln trainieren. Heben is lift, ऊपर उठाना. सो आर्म को भी लिफ्ट कर सकते हो. ओके. बाइन भी हो सकता है. यस. मान लो एक्सरसाइज करते हैं तो पैर को भी कई लोग ऊपर उठाएंगे तो आ जाएगा. Das Bein heben, den Arm heben, den Körper
या मुस्कुलन हाबन भी सही है. यू हैव मसल्स, मुस्कुलन हाबन, वी हैव मसल्स. क्योरपर ट्रेनियरन भी हो सकता है. क्योरपर जो अनविंकन भी हो सकता है. अनविंकन का मतलब है जैसे हाथ हिलाना या फिर स्ट्रेच करने के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी एक्सरसाइज में हम करते हैं. या जो manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Sometimes multiple options भी रहते हैं. That should make sense. Yeah. So heben is to lift, ऊपर उठाना. ट्रेनियरन ट्रेन एक्सरसाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में. हाबन इज टू हैव एंड अनविंकन हाथ हिलाना, स्ट्रेच करना. और योफनन ओपन. जो औगन योफनन ओपन योर आईज. ओरन क्योर पर हाबन वी हैव बॉडी. हाँ हाँ राइट. हो सकता है आर्म हेबन, हैंड हेबन हो सकता है. पूरी बॉडी को उठाना ऐसे बोलते नहीं है वैसे. इफ इट इज सेंसफुल वी कैन. स्पोर्ट और ट्रेनिंग. लाउफन इस्ट गुड. टेक्स्ट पढ़ा अपन ने, उसमें दिया हुआ था ये सब. जाइटे जो लाउफन इज गुड फ्यूर. रनिंग जो है वो किसके लिए अच्छा है. Augen und Ohren, den Oberkörper, den ganzen Körper. B ist gut für den ganzen Körper. Bergsport. Bergsport का मतलब है पहाड़ों पे चढ़ना. रिस्टेश मोस्ट गुड फॉर ब्राइटेड वेडन. आप पहाड़ों पे चढ़ाई करते हो तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए. सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि बैर्ग स्पोर्ट इज जिशर. ये कह रहे हैं सेफ है. सेफ तो नहीं है भाई, वो रिस्की है वो तो. और बैर्ग स्पोर्ट खान येडर माखन कह रहे हैं बैर्ग स्पोर्ट तो कोई भी कर सकता है, हर किसी के बस का नहीं है वो. उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है. सो आइस ट्रिस्टिश. बॉडी बिल्डर. अख्तन. यस. खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा उनको. ठीक है, मीट नहीं खाएं या फिर कम ट्रेनिंग करें तो नहीं चलेगा. ताई ची. नाटवर. Nein, das ist nicht richtig. Ja, B ist richtig. बिकॉज फर्स्ट में इन्होंने वो नूअर लगा दिया कि ओनली अडल्ट लोग ही कर सकते हैं. कोई भी कर सकता है, सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये नूअर बोल दिया तो इससे गड़बड़ हो गया ये. और यहाँ पे इमर इंडेर नाटवर. नूअर और इमर कि ये नेचर में ही कर सकते हो, ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो ना. यस, यू कैन एनीवेयर. Dann gibt es hier Sportarten. Sportarten का मतलब है different kind of sports. Ja, gut. Wir checken ob Gautam ist da. Gautam, bist du da? Oh, nicht. Manish, du kannst lesen. Yes, sir. Ja, Manish liest. Ich mache. Ich mache viel Sport. Ich bin Regel Maschig, Laufen und Schwimmen. Ich mag gerne Sport allein. Allein. Dann habe Allein. ich seit Juni allein. Dann habe ich seit Juni nachdenke und ich fahre. Im Urlaub fahre ich Ski oder gehe Bergsteigen. Bergsport ist mein Lieblingshobby. Ballsportarten gefallen mir nicht gut. Ich mag kein Fußball oder Handball. Das finde ich blöd. Okay, stop.
Das finde ich blöd. Blöd. इसको क्या पढ़ा, वापस पढ़ो. GUT. Gut. This one, Manish. हाँ सर. What is this? कौन सा सर? Underline. अंडरलाइन किया है मैंने कुछ. Bergsteigen. This one. जी सर. दो और किए अंडरलाइन को वापस पढ़ो. Alien. नो. अलाइन. बोलो अलाइन. EI is ein. ये जाइट नहीं है. जाइट नहीं है ये. साइट. TS है ये. साइट. यस. सो इजाबेल ने बताया अपने बारे में. इस माह के फील्ड स्पॉट, बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करती हूँ. इस गेयर रेगलmäßig लाउफन und schwimmen. मैं रनिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ रेगुलरली. इस माह के गैर स्पोर्ट अलाइन. मैं स्पोर्ट्स अकेली करती हूँ. मुझे गैर ना आ गया मतलब आई प्रीफर. यस, पसंद है उसको. अकेले स्पोर्ट करना पसंद है, ग्रुप में नहीं. Dann habe ich Zeit zum Nachdenken and then I have time to think und entspannen. जैसे मेरे को बोलना है कि मेरे को डायलॉग पढ़ना है तो इस प्रेशर की डायलॉग है. No? क्यों जी इस प्रेशर की डायलॉग है. Ja, darf ich den Text lesen? क्यों नहीं तो बोल सकते हैं ना सर. कानिश का मतलब तो मैं कर सकता हूं, राइट. लेकिन मान लो ऑफिशियल परमिशन लेनी है तो डार्फिश. मान लो ये मेरे से पूछेगा तो कि भाई मैं यहाँ पे अथॉरिटी हूं, योर टीचर है ना, तो डार्फिश यहाँ पे आएगा. दोस्तों में आपस में कानिस बोल सकते हैं. कान और क्योनन और ड्यूरफन. यस यू कैन. सो क्योनन और ड्यूरफन में यही फर्क है कि कान से भी हम परमिशन ले सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स के बीच, और ड्यूरफन से ऑफिशियल परमिशन होती है. वो अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, मम्मी पापा हैं घर में, राइट. बड़ा भाई है तो उससे भी कभी कभी वो बॉस हो जाता है, या फिर ऑफिस में बॉस हैं उनसे हम लोग कोई परमिशन लेते हैं तो उसके लिए ड्यूरफन यूज करते हैं. या सो ये क्लियर है टेक्स्ट. गुड डन. ये सेंटेंस का क्या इस डार्क की डायलॉग एक्सप्रेशन. डार्फिश एक्सप्रेशन नहीं, लेजन. लेजन पढ़ना. यस, डायलॉग लेजन. या करेक्ट. वर्ड पहले आएगी क्वेश्चन बनाने के लिए. डार्फिश den Text lesen. Bitte schon. Ja, gerne. Gautam. In der Woche mache ich Wein Sports. वाइन बोल रहा है ये. ध्यान रखा करो, नजर रखा करो. कोई अगर गलत पढ़ता है ना तो उसकी टांग खींचनी है, ताकि धीरे धीरे, मतलब उसको परेशान करना मकसद नहीं है, लेकिन उसको ठीक भी तो अपन करेंगे. कौन करने आएगा उसको ठीक. ठीक है. और आप ज्यादा खींचोगे तो मैं रोक दूंगा, चिंता मत करो, है ना. सो Ist der Woche mache ich Wellness Sport. Ich muss viel arbeiten und habe wenig Zeit, aber ich fahre Zeit, aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad am Fahrrad zu Wochenende spiele mit Freunden Tennis oder Fußball. Ich mag Sport in der Gruppe. Tennis ist super. Es macht fit und macht viel Spaß. Laufen oder Bodybuilding finde ich langweilig. वेरी गुड. अच्छे पढ़ते हो. कोई वर्ड जो गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाएगा, हम सब ध्यान रखेंगे तो. और क्लास के बाद में भी कभी कभी आप कोई टेक्स्ट पढ़ के और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको रीड करके छोड़ सकते हो. बाकी लोग देखेंगे कैसा रीड करता है, तो ये भी एक चांस है आपका. इन देर वॉक है माखिश वेनिश स्पोर्ट. वेनिश स्पोर्ट का मतलब ज्यादा कि कम. मैं वीक में. इन देर वॉक है मतलब वीक के दौरान मैं स्पोर्ट कम ही करता हूं. स्मूथ फील आर्बाइटन, और फिर रीजन दिया इसने कि बहुत काम करना पड़ता है. हाबे वेनिश साइट, टाइम कम ही रहता है मेरे पास.
wenn ist Sport, wenn ist Zeit. Aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit, but every day I go to work by Mit meinem Cycle. या फाराट. व्हीकल के लिए आपको जब प्रीपोजिशन सिखाई तो बताया था प्रीपोजिशन में मिट व्हीकल चलाने के लिए या फिर जनरल विद, दो सेंस हैं उसके. तो यहाँ पे मिड dem Fahrrad व्हीकल वाला कॉन्टेक्स्ट आया है. Am Wochenende spiele ich mit Freunden Tennis oder Fußball. वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ. mit Freunden प्लूरल है, ये डाटिव प्लूरल. फुटबॉल. स्मार्ट स्पॉट इन देयर ग्रुप है, इन देयर ग्रुप है. ये आकुजाटिव है कि डाटिव है, क्या है ये? दी ग्रुप होता है वैसे तो. और दी ग्रुप के कारण देयर ग्रुप हो गया. यस डाटिव. इनके कारण. यस दी डेयर हो जाता है डाटिव में. सो इन प्रीपोजिशन के कारण हुआ है. यस. Es macht fit und macht viel Spaß. इससे फिट भी रहता हूं, मजा भी आता है. Laufen oder Bodybuilding finde ich langweilig. ये रनिंग वनिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग, ये मुझे बोरिंग लगता है. टिश टेनिस, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस, नॉर्मल टेनिस इसको सर पसंद. आपने बताया था कि सिटी के अंदर ही घूमने का सर इन से यूज करेंगे ना. यस इंडेयर स्टार्ट. सिटी के अंदर की बात है तो इंडेयर स्टार्ट. और क्या कह रहे हो आप? डिपेंड करता है कि आप सिटी में जा रहे हो या सिटी में पहले से हो. जैसे कोई बोले मैं तो सिटी जा रहा हूं, तो इसका मतलब पहले से नहीं हो, तो आकुजाटिव हो जाएगा. ये है इन दी स्टार्ट. इन दी स्टार्ट. सुअर स्टार्ट भी हो सकता है, सू डेर होगा, लेकिन फिर क्योंकि सू डाटिव होता है और गेहन के कारण इन जो है वो आकुजाटिव रहा है. और कोई बोले कि मैं तो सिटी में ही हूं, तो क्या हो जाएगा? इश बिन. यस, ये इस बिन इन देयर स्टार्ट होगा, ये डाटिव होगा क्योंकि पहले से ही. आउट ऑफ सिटी के नाम आउट ऑफ सिटी के लिए तो जब सिटी का नाम लेते हैं तो आ जाएगा. ना खाएगा फिर. जैसे नाक जोधपुर, सिटी का नाम लोगे तो ना खा जाएगा आउट ऑफ द सिटी कहीं जाने के लिए. यस. नाउ देयर आर 5 स्टेटमेंट्स. 3 आर मैचिंग, 2 आर नॉट मैचिंग. सो या vielleicht Ramotar, lies 1. Ich finde Skifahren Skifahren gefährlich. gefährlich. Yes. So इस आएगा कुछ इसमें से? फॉल्स. कुछ नहीं आएगा. नॉट मैचिंग. इसकी नहीं है ना, इसकी तो वो हम पहाड़ों में बर्फ में करते हैं. या दैट इज शी फारन. सो इसमें है ही नहीं शी फारन. ओके देन मनीष. 2 स्काई डाइविंग. स्पानेंट. स्पानेंट का मतलब है यहाँ पे थ्रिलिंग की. स्की डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग. सो विच वन इज स्काई डाइविंग? से. सो दैट इज 2 इज से. ओके विकास. कायाक. ए नहीं आ. और ये कायाक फारन है. या जे को ये बोलते हैं ना हम लोग, या कायाक फारन. also das ist richtig. Okay. Yes, sir. Dann Klettern. केल्टर्न नहीं है, क्लेटर्न. gefährlich. Ja, richtig. Ja, Shruti, du kannst lesen 5. Torschen mit Heilen gefällt mir
überhaupt nicht. Ich finde das furchtbar. Okay, so this is tauchen. Tauchen. Tauchen mit haien gefällt mir überhaupt nicht. डर लगता है मुझे तो. So das ist dann B. Ja, das findet man gefährlich. एक क्वेश्चन था जैसे फोर्थ नंबर पे gefahrlich है, ये लिश कहाँ पे और कैसे लगता है? जैसे wörtlich, gefahrlich, LICH वर्ड्स में कब लगाते हैं? ऐसे नहीं लगाते, अपन नहीं लगाते, वो तो पहले ही लगे हुए हैं. इट इज डेंजरस. ये तो वर्ड्स बनते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसके साथ LICH लगा सकते हैं. अलग अलग तरह से वर्ड्स बनते हैं. किसी में BAR लगता है, किसी में LICH लगता है, किसी में NIS लगता है. ये डिफरेंट डिफरेंट है, कोई फिक्स रूल नहीं है इसका. राइट? आपको लर्न करने पड़ेंगे वर्ड्स. वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे और फिर थोड़ी फीलिंग आएगी अपने आप. जनरली एडवर्ब जनरली आपको दिखेंगे. एडवर्ब इस तरह के है ना, कि जैसे टाग, टैगलिश, मोनाटलिश, स्टुंडलिश, मिनटलिश. मतलब टैगलिश का मतलब हो गया डेली, डेली रोज ही. मोनाटलिश मंथली. तो जैसे कोई बोलता है फिजिकली, मंथली, टैग ना, उस टाइप से. बट अपन नहीं लगाएंगे, वो पहले से लगे हुए हैं वही देखने अपन को. या हियर das ist Dialog. So das ist 1. ये बीच में माइनस का सा निशान दिख रहा है आपको, ये सेपरेट कर रहा है अलग स्टेटमेंट्स. ये इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये एक साथ है और ये एक साथ है. सो इनमें से आपको देखना है कौन सा वाला मैच करता है. नंबरिंग कर देंगे हम लोग. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ich habe स्टैर्क है क्या? ये स्टार्क है. Zahnschmerzen. So here 1 कि मेरे दांत दर्द है. Zahnschmerzen का मतलब है टूथेक, दांत में दर्द है. Haben Sie einen Termin? Nein, leider nicht. Oh, leider nicht. Unfortunately, I don't have appointment. पूछा टर्मिन अपॉइंटमेंट लिया है क्या? बोला नहीं, अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया. देन क्या हमारे पास पहले आए हो कभी? ओके गौतम, फिर से पढ़ो इसको. गौतम, एक अपने आप ऐसे मत करो कि यह व्यवस्था दिखे. गौतम, रीड दिस. waren Sie schon einmal bei uns? इसका जवाब पढ़ो. ओके, लिव इट. श्रुति, तुम पढ़ो. Yes, sir. Ja, mein Name ist Marjanovic. Muss ist lange warten? इसका मतलब ये हुआ यस, माय नेम इज मारियानोविच, मुझ इस लंगे वाटन, मेरे को वेट करना पड़ेगा क्या? ओके मनीष, फोर्थ, यू रीड द क्वेश्चन. लाइडर, लीडर नहीं है ये, लाइडर. EI को आई पढ़ो. Wir haben heute viele Patienten. Ich ब्राउक है. brauche ihre
सर्टन फर्जी सर्टन कार्ट है, तो इसका मतलब है अनफॉर्चुनेटली हाँ, आज आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं आज। वी haben heute viele Patienten, पेशेंट्स ज़्यादा हैं आज। Ich brauche Ihre Versichertenkarte, I need your insurance card। So गौतम आंसर दिस, कि अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखाओ। हियर बेटे, ये लो इंश्योरेंस कार्ड मांगा आपने, हियर बेटा। देन गौतम या डंके, So here is Ihre Karte, bitte nehmen Sie die Wartezimmerplatz। बेटे नेमन जी इन वाटर सिमर प्लास, आप वेटिंग रूम में बैठिए। जवाब में Mache ich danke। गुड गुड माखेश डांके, ओके ठीक है, बैठता हूं। एंड देन टैबलेटन, ये कौन सा वर्ड आपस में मैच नहीं कर रहा है इसमें। एक वर्ड ऐसा है ओडमन आउट जो डिफरेंट है किसी भी कारण से, हम लोग देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। द टैबलेटन देर हाउस नहीं, हुस्टनसाफ्ट, दस वासर द मेडिकामेंट है। वासर डिफरेंट है, यस, बिकॉज बाकी सब दवाइयां हैं, ये पानी है। मेडिकामेंट है, हुस्टनसाफ्ट, टैबलेटन, ये पानी हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया। ओके विकास, यू रीड सेकंड लाइन। Der Zahnarzt, die Halsentzündung, die Grippe, die Ohrenschmerzen, and different which Hals die Grippe। ग्रीपे ही लग रहा है, या sir। बट इसमें तीन तो बीमारियां हैं, एक कोई पर्सन है, सानार्स, तीनों तो बीमारियां हैं एक तरह से। जैसे ये तो फ्लू हो गया, ग्रिप है मतलब फ्लू, और हाल्स शुंडुंग का मतलब है ये गले में सूजन, इन्फेक्शन। फ्लू हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ओरेंसमेटसन कान दर्द है, और यहां पे डेंटिस्ट डॉक्टर, तो ये डॉक्टर अलग हो गया, ये तो तीनों तकलीफ होगी। ओके देन मनीष, ड्राई, Yes sir, ड्राई, they determine the Determine the greatest Karte फर्जिशर्टन कार्ट है। for the certain carpet Morgan इसको गौतम, इसको भी बोलने दोगे या तुम ही बोलोगे बीच में? एक बार अफर्ट तो करने दो उसको, दोबारा से बोलो मनीष, शुरू से। mean the for the fair Zekan Carter the Morgan स्मेटसन, Gart Wartezimmer। बिल्कुल सही। सर इसको क्या है कि मागन स्मेटसन का मतलब है पेट दर्द, मागन, बाउक स्मेटसन, मागन स्मेटसन, ये पेट दर्द है। तो ये फर्जिशर्टन कार्ड का मतलब है इंश्योरेंस कार्ड, वार्टेसिमर का मतलब है वेटिंग रूम, एंड टर्मिन इज अपॉइंटमेंट। तो कौन सा डिफरेंट लग रहा है? टर्मिन फर्जिशर्टन कार्ड है, मागन स्मेटसन नहीं सर, इसमें मार्गेशन अलग है। ये बाकी सब, ये अलग है मॉरिस। हाँ ये अलग है, क्योंकि बाकी सब क्या है, डॉक्टर की जो क्लिनिक है उससे रिलेटेड से वर्ड हो गए है ना। क्लिनिक से रिलेटेड आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, वेटिंग रूम में आप बैठते हो, और ये मार्गन स्मेटसन, ये दर्द हो गया। अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, बट नॉर्मली इस तरह का ये बेटर ऑप्शन है। ओके नाउ फ्लाइस्ट विकास, Der Kinder asked
die Arztin-Helferin, आर्स्टिन कहाँ है? आर्स्ट हेल्फरिन, Arzthelferin, die Augen-Arztin, die Arztin, Ärztin. अब इसमें अलग है der Kinderarzt. गौतम यही अलग लग रहा है? नो, नहीं सर, तीनों तो वो है ना, ये तीनों तो फीमेल है और ये एक मेल है, तो ये एक अलग हुआ ना। अच्छा ऐसे देखा है आपने, ओके राइट। अलग अलग देखो, हम सब डिफरेंट लोग हैं तो अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैंने इसको ऐसे सोचा, बाकी तो तीनों डॉक्टर हैं और ये उनकी असिस्टेंट है, तो इसको अलग कर दो, ठीक है ना। कि जैसे आउगन एर्स्टिन ये आई स्पेशलिस्ट है, आंखों की डॉक्टर है, हाउस एर्स्टिन आपकी घरेलू फैमिली डॉक्टर है, और ये किंडर आर्ट्स बच्चों का डॉक्टर है, और ये आर्ट्स हेल्फरिन तो ये असिस्टेंट है, ये तो डॉक्टर की हेल्प करने वाली है, तो इसलिए इसको अलग कर दिया। फ्यून्फ डन। गौतम फ्यून्फ Der Husten, das Rezept, das देखो दास पढ़ रहा है, देखो दास पढ़ रहा है इसको। der Ersen, डेयर स्नुप्फन der Schnupfen, das Fieber. या फीबर। सो व्हाट इज डिफरेंट? सोचो क्या डिफरेंट है? अगला का नाम हाँ, कोई भी बता सकता है? Fever. रिसिप्ट, दस रेसेप्ट, बिकॉज ये बाकी की, ये खांसी है, ये जुकाम है, ये बुखार है, और ये तो रेसेप्ट डॉक्टर जो पर्ची देता है ना डॉक्टर, 10 रेसेप्ट वो है, तो 10 रेसेप्ट इज डिफरेंट हियर। डन। फरबिंडन जी, नॉमन और वर्बन, यहाँ पे वर्ब और नाउन है, सो इनको मिलाना है। या मैच करना है। माखन मीन्स टू डू, श्राइबन टू राइट, हाबन टू हैव, To have, फॉर श्राइबन Schreiben यानी कि डॉक्टर लिखना, डॉक्टर का लिखा हुआ। डॉक्टर की दवाई लिखना, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन, वॉन्ट नेम टू टेक। सो eine Krankheit, Haben, ja Krankheit haben, Tabletten, nehmen, you take tablets, yes, and Rezept, and Schreiben, verschreiben, and Schreiben, jeden krank schreiben, jemanden krank machen, machen, krank machen, jemanden krank, ja schreiben, Ja. einen Termin machen, einen Termin machen. या टर्मिन माखन, राइट। टर्मिन माखन मतलब टू टेक एन अपॉइंटमेंट, या ich habe einen Termin, ich mache einen Termin, okay, ja klar। Sie dürfen keinen Alkohol trinken, कौन बोलेगा ये? डॉक्टर बोलेगा कि पेशेंट बोलेगा? Sie dürfen keinen Alkohol trinken, डॉक्टर बोलेगा। डॉक्टर मतलब आर्स्ट, पेशेंट मतलब पे, ओके आर्स्ट। Mir geht es nicht gut, ich fühle mich seit Tagen krank, P, Patient। Ich schreibe Sie krank, trinken Sie viel Tee und ruhen Sie sich aus, Arzt। Sie haben eine Erkältung, bleiben Sie ein paar Tage zu Hause, Rest, आर्स्ट। डॉक्टर बोलेगा कि आपको जुकाम हो गया, थोड़ा रेस्ट करिए। वन muss es die Medikamente nehmen, Patient बोलो इसको, Patient। Ich habe Magenschmerzen, Patient। Gute Besserung, आर्ट्स बोलेगा ठीक हो जाओ। गुटे बेशरूम का मतलब है गेट वेल सून, किसी को बोलना जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं देना। Ich habe seit 3 Tagen Fieber,
क्या बोला इसको? पार्टियंट बोलोगे, पासियंट? पासियंट बोल रहे हैं, यस, पासियंट। एंड देन इनकी बीमारी क्या है, पता लगाओ। फीवर, ओके, हुस्टन, पेट दर्द भी है क्या? देन मार्गन स्मेट्सन, मार्गन स्मेट्सन, एक ही बात है, मार्गन स्मेट्सन, बाउक स्मेट्सन। तो ओके, पेट दर्द भी हो सकता है या खांसी के कारण पेट पे लगा रखा है। ओके, हियर कॉप्समेट्सन, कॉप्समेट्सन, एंड हियर बाउक्समेट्सन, इनको हुआ पेट दर्द या बाउक स्मेट्सन या मार्गन स्मेट्सन, बाउक स्मेट्सन। इनके लिए, किसके लिए ये वाली टिप ठीक रहेगी? ब्लाइबन जी im Bett, जी müssen viel schlafen। Okay, 1, 2, 3, 2 is here, das ist dann 3 und das ist 4, okay, so vielleicht 1 checken wir, बदल लेंगे अपन को, कोई दूसरा बेटर लगेगा तो। नेमन जी den Hustensaft, Hustensaft, dry, Hustensaft is कफ सिरप, खांसी। कुछ मत खाओ आज। फियर, SNG heute nix, nehmen eine Kopfschmerztablette, das ist 2 Kopfschmerztablette, हेडेक की दवा। देखो वर्ड्स का ही खेल है, आपको वर्ड्स आता है तो ही तो बताओगे कॉप्समेट्सन वर्ड आता है तो लगता है एकदम इजी है, और वर्ड नहीं आए तो वहीं अटक जाता है आदमी। तो वोकैब आपको एक एक लर्न करनी पड़ेगी भाई। Gute Besserung, was ist wichtig? Kreuzen Sie an, Medikamente kauft man, wo kauft man Medikamente? कहाँ खरीद? ऑर्डर बे, इंडेर अपोथेके। मेडिसिन तो मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगी, वेटिंग रूम में थोड़ी मिलेगी। ये वार्टेज़िमर है वेटिंग रूम, ये है मेडिकल स्टोर। सो मेडिकमेंटे काउफ मान तो एक है। द्राई alle Versicherten haben, इसका बताओ पहले। Krankenversicherten Karte, ja, das। Termine beim Arzt, bei der Ärztin macht man B, ja, bei der Sprechstundenhilfe, Sprechstundenhilfe, ये कंसल्टेशन आवर्स, मतलब डॉक्टर के यहाँ पे आप कॉल करते हो तो उनसे आपको लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट। Das Rezept für die Medikamenten bekommt man beim Arzt। दवाई तो डॉक्टर लिखेगा, राइट, वो तो देंगे। सो रेसेप्ट डॉक्टर के यहाँ पे। ओमास टिप्स, कि भाई सब डॉक्टर के पास ही मत जाओ, दादी के नुस्खे भी अपना लो। सो was macht man gegen Magenschmerzen, ये कोई ऑनलाइन चल रहा है डिस्कशन, तो एक एक करके आप लोग पढ़ें। मे बी रामोतार यू रीड फर्स्ट वन। जिमोन, was macht man gegen Magenschmerzen, कि पेट दर्द में क्या करें? तो जिमोन ने लिखा है सबसे पहले। Meine Oma hat eine super Tipp. Sie trinkt Heißen Caminante, den Tibik Hong trinken
then team mit Honish. Trinken und Ratin das Fetish. यस, खामिलन टे उसी को एक्सप्लेन किया है। खामिलन टे उसको बोलते हैं टे मिट होनिश, हनी के साथ टी। मेरी दादी तो ये नुस्खा अपनाती है भाई। माइने ओमा हार्ट आई मीन सुपर टिप जी ट्रिंक हाइसन खामिलन टे den Tee mit Honig trinken und fertig। fertig मतलब और हो गया, पीते ही काम ठीक हो जाता है। Das hilft sehr gut, it helps really very nicely। ये बहुत हेल्प करने वाला नुस्खा है अकॉर्डिंग टू या सर डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है सर। नेटवर्क ठीक है आपका? तो बाकी लोगों को दिख रहा है डिस्प्ले? Yes sir। धुंधली हो जाती है, बीच में चल जाती है सर। थोड़ा बहुत हो सकता है। कलर हो जाती है। हाँ, वो अपना दूसरा भी ओपन करके रखो, फिर उसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो कभी कभी होता है इस तरह से। डन मे बी मनीष स्वाई। Das ist ein kleiner Tipp, danke eine Suppe hilft bei mir auch immer super। Ja, eine Suppe hilft bei mir auch immer super। Suppe hilft super, ये कह रहे हैं थैंक यू इस टिप के लिए। तो बट मैं तो सूप पीता हूं तो उससे भी मेरा तो काम हो जाता है। सूप पीने से मागन स्मेटसन, पेट दर्द है तो सूप पीने से भी आराम मिलता है, वो भी एक तरीका है। ओके डन। गौतम जैसे सोनन हारी इसके है माखन में भाई माखन है क्या? ये मागन तो नहीं है? मागन हाँ, मागन मेर्शन immer zum Arzt, der kann am besten helfen। हेल्फन यस भाई, पेट दर्द में मैं तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो ही हेल्प कर सकता है अच्छे से। बाकी तो ठीक नहीं है इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना। ओके श्रुति। immer सर इमर मतलब ऑलवेज हमेशा। या Michelle, ich finde, man sollte zu Hause im Bett bleiben. Cola und Salzstangen helfen auch. Cola und Salzstangen helfen auch। उसको ऑफ बोलते हैं ऑफ। auch Auch। auch खाना। UCH आ गया ना। Yes। यू आ गया तो क्या हो गया? बिल्कुल ऑफ और ऑफ इसलिए auch klar so ist es। इसने अपनी बताई। Ich finde, man sollte zu Hause im Bett bleiben, घर में रहो, रेस्ट करो, कोला वोला लो, जाल्स टांगन हेल्फन आउक। ये अलग अलग तरह की एक तरह से जड़ी बूटियों वाली बातें हैं इस तरह की। ये जाल्स टांगन कोई मुलेठी टाइप का सा मामला तो नहीं है। हेल्फन आउक यहाँ पे लिसनिंग करनी है आपको। प्रॉब्लम है उन राट्सलेगे की बात करेंगे आज, इसी की बात करेंगे। एंड ये लास्ट, इसमें नॉमिनेटिव अकुजाटिव देखना है। जिस टू डिन टोलन टिप, ये सारे पार्टी में डिस्कशन चल रहे हैं भाई। पार्टी में हैं सब लोग, पार्टी में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है आपस में, एक दूसरे की बातें, मजे, डिस्कशन, गपशप सब चलते हैं। तो यहाँ पे इससे जर्मन की कल्चर का भी पता चलता है थोड़ा सा। सो ये बात कर रहे हैं जिस टू डिन टोलन टिप दाद्रूबन का मतलब वहां ओवर देयर। तुमको ये बंदा दिख रहा है टोलन टिप, ये मस्त सा बंदा दिख रहा है। टिप कोई बंदे के लिए। डिन ब्लोंडन, ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाला जिसके ये सुनहरे से बाल हैं, इसकी बात कर रहे हो क्या? पेटर, अरे पेटर है ये तो। फिंडिश टू गुड क्या आएगा यहाँ पे? पेटर के लिए आएगा कोई वर्ड? पेपर के लिए पेटर कोई बंदा है ना, पेटर। बेस्ट
वर्ब तो आ चुकी है ऑलरेडी, अपन को चाहिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? इसमें स्मीयर, यस, क्या आएगा? अकुजाटिव ना, ऐसा इन यस, फिंडिश टू इन, फिंडिश टू इन गुड। सही लगा क्या तुमको ये बंदा? या एरजीट जू पर आउस, हाँ मस्त लगता है, दिखता है। आउस जहन का मतलब है टू लुक, तो मस्त दिखता है। इस हाब जाने टेलीफोन नंबर, मेरे पास उसके टेलीफोन नंबर है, कॉल कर लेना। क्या आएगा? उसको कॉल कर लेना। पेटर कोई तो रूफ, इसमें भी ई नहीं आएगा। रूफ इन डॉकमाल अन, कॉल कर लो उसको। फिर दूसरा डायलॉग स्टार्ट हो गया। बिश टू नॉक मिट उला सुजामन, अरे तुम अभी भी उला के साथ ही रहते हो क्या? तो अब इसके हिसाब से आएगा, एयर के हिसाब से आएगा, जी के हिसाब से जी आएगा सर, जी आएगा, बिल्कुल सही। उला कोई फेमिनिन है कि हाँ उला के साथ ही। नाइन मना कर रहा है। इस schon seit einem halben Jahr nicht mehr getroffen, मैं तो 6 महीने से मिला ही नहीं हूँ। हेलो, ich glaube, ich habe, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ich habe, आपको कहीं दिखा है। जी आएगा ना फिर, स्मॉल की कैपिटल, कैपिटल आप वाला। Ich habe sie schon einmal gesehen. Ja, natürlich, of course. Am Montag haben wir uns in der Galerie getroffen. हम लोग मिले थे ना वहां पे गैलरी में। Wie geht es Ihnen denn? वहाँ म्यूजियम वगैरह में मिले हैं ये। कैसे हैं आप? ओके, देन नेक्स्ट वाला क्लोथ्स को लेके, कपड़ों पे आपस में कमेंट करते हैं ना, अच्छा है ये। Du hast ja ein tolles Kleid an, वर्ब कौन सी है इसमें? ओके, अनहाबन, अनहाबन है वर्ब। 3 वर्ब होती हैं, अनहाबन, अनसीहन और त्रागन। अनहाबन, अनसीहन और त्रागन, तीनों का मतलब है पहनना। यहां पे अनहाबन यूज हुई है। डू हास्ट या ein tolles Kleid an, अरे तुम्हारा तो बड़ा मस्त लग रहा है ये वाला गाउन, ये जो क्लॉथ है बढ़िया है। danke, थैंक यू। ich habe, इसको मैंने लास्ट वीक ही खरीदा है। क्या आएगा यहाँ? क्या लिखूं यहाँ पे? एस आएगा, एस, एज नहीं एस। Ich habe es letzte Woche gekauft. I have purchased it last week only. Next dialogue. Ihr habt im Café am Markt getroffen. तुम लोग उस मार्केट में कॉफी हाउस में मिले हो। Ihr habt euch im Markt gekauft. Du und ein junger Mann, तुम एक यंग आदमी से मिली हो। Du liebst nicht mehr, तुम मुझे प्यार नहीं करती। ओके, शक कर रहा है तो। Du liebst mich nicht mehr, natürlich liebe ich dich noch, of course I love you, ist mein Kollege, वो तो मेरा कलीग है। Wir hatten ein Arbeitsessen, खाना साथ में खाया तो क्या हो गया? या Arbeitsessen, जो 10 बार या डिस्टिश। अभी इंपेरेटिव की बात करेंगे। इंपेरेटिव जेहन तो लिसनिंग है, ये तो इंपेरेटिव की एक चीज बची है इसमें। दिस इज इंपेरेटिव। मोमेंट, इंपेरेटिव में हम लोग इंपेरेटिव और लेटर इंपेरेटिव का मतलब है कभी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन।
इन चीज के लिए इंपेरेटिव हम लोग जनरली यूज करते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन उसको देते हो जो आपके सामने है। तो ये यूज होता है डू के लिए, ईयर के लिए और जी के लिए। सामने जो भी है उसको या तो आप तू बोलोगे या तुम सब, आप या आप सब, ऐसे ही तो बोलोगे सामने वाले को। तो इंपेरेटिव जो है हम लोग इनका ही बनाते हैं ना, जनरली यही दिखेंगे आपको इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे मैं बोलूं डू मार्क्स्ट jeden Tag योगा, इसका मतलब है तुम हर दिन योगा करते हो। ये तो स्टेटमेंट है नॉर्मल। इंपेरेटिव जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होता। इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑर्डर होता है, जनरली इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, इंपेरेटिव को वर्ब से स्टार्ट करते हैं और डू, ईयर और जी से उसको बनाते हैं हम लोग। नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। ईयर का भी ऐसा ही, ईयर मार्क्ड jeden Tag योगा, ये भी नॉर्मल स्टेटमेंट बोला है मैंने। फिर जी से क्या बनेगा, जी machen jeden Tag योगा, jeden Tag योगा। ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गए। लेकिन इंपेरेटिव का रूल ये बोलता है 3, 2, 1। 3 to 1, 3 to 1 में मतलब डू का जो सेंटेंस है उसमें से 3 चीज उड़ा दो, ईयर के सेंटेंस में से 2 चीज उड़ा दो और जी के सेंटेंस में से 1 चीज उड़ा दो। 3 to 1। तो इसमें 3 में सब्जेक्ट उड़ेगा, वर्ब का कंजुगेशन किया हुआ पार्ट उड़ेगा और फुल स्टॉप उड़ेगा। तो फुल स्टॉप की जगह तो लग जाएगा इंपेरेटिव का और बाकी हो गया बस मक jeden Tag योगा। 3 चीज उड़ा दी बस हमने। डू मार्क्स्ट jeden Tag योगा में से मक jeden Tag योगा, रोज योगा करो। इसमें 2 चीज उड़ानी है तो सब्जेक्ट उड़ा दिया और फुल स्टॉप उड़ा दिया। तो इसमें बचा मार्क्ड jeden Tag योगा और इंपेरेटिव macht jeden Tag योगा। और Sie machen jeden Tag योगा, इसका इसमें से जी उड़ाना है, इसमें जी भी नहीं उड़ाना, इसमें केवल फुल स्टॉप उड़ाना है। फुल स्टॉप। और वर्ब को पहले ले आना है क्योंकि वर्ब शुरू में आती है इंपेरेटिव में। तो हो जाएगा माखन जी माखन का माखन जी हो गया क्योंकि वर्ब को पहले लाना है। माखन जी jeden Tag योगा, ये इंपेरेटिव है। वर्ब से होगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, इसके लिए इसको यूज करते हैं। और 3 to 1 ये इसका रूल है। इसके अलावा जो जाइन वर्ब है, इसका जाइन का कॉन्जुगेशन तो इस बिन, डू, बिस्ट, एयर, एस जी, इस्ट या ईयर, जाइट, जी जिंट, नॉर्मली तो ऐसे होता है लेकिन इंपेरेटिव के हिसाब से ऐसे नहीं होता। जाइन जो है इंपेरेटिव में बन जाती है जाइन। तो डू के साथ होगा जाइस्ट, जू का डू का इसका कॉन्जुगेशन जब करते हैं डू के साथ तो जाइस्ट हो जाता है और एर एस के साथ जाइड और जाइन। तो एस टी तो उड़ी जाएगा। ये वर्ब वहां यूज होती है जैसे प्यूंक्लिस जाइन, जाइन जिसमें आता है गिडुल्डिस जाइन, तसल्ली रखो, टाइम पे आओ,
इस तरह की कुछ वर्ब्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्यूंक्लिश जाइन, geduldig sein, ehrlich sein, इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। ehrlich sein का मतलब है ईमानदार होना। तो ईमानदार रहिए, अगर कोई बोले ईमानदार रहिए तो बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। ईमानदार रहिए, ईमानदार बनिए। सो डू से क्या बन जाएगा? जाई, जाई एयरलिश। ईयर से जाइड, और जी से जायन जी एयरलिश, जायन जी एयरलिश। ये जाइन वर्ब का स्पेशल केस है बस। और इसके अलावा आर्बाइटन वर्ब है, जैसे और भी कोई वर्ब हो सकती है जिसमें ये dt आता है en से पहले, उस केस में ये कोई इसका स्पेशल केस नहीं है, नॉर्मल रूल भी है ये कि डू के साथ क्या होगा, ये डू आर्बाइटेस्ट होता है ये। बाकी में तो st लगता है, लेकिन dt वाले केस में खास तौर पे est लगता है। ईयर आर्बाइटेड और जी आर्बाइटन, तो बाकी में तो फर्क नहीं है, लेकिन डू वाले में ये एक्स्ट्रा ई लगता है, लेकिन हटाएंगे अपन st, जैसे बाकी में st हटाते हैं तो इसमें भी st हटाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आर्बाइटर। कोई बोले तुम मेरे लिए काम करते हो, तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो हो गया डू आर्बाइटेस्ट फ्यूर मिश, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। ईयर arbeitet für mich और Sie arbeiten für mich, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब इसको इंपेरेटिव में करना हो तो पहला क्या हो जाएगा, st हटेगा बस, arbeite für mich और इंपेरेटिव हो जाएगा। दूसरा यस arbeitet für mich, और तीसरा यस arbeiten Sie für mich, ऐसे हो जाएगा। तो ये इंपेरेटिव है। आपको आज घर पे क्या करना है, ये होमवर्क है आपका, कि इसमें हिंट भी दिया है कि जी से बनाना है या ईयर से बनाना है या डू से बनाना है, ये हिंट दिया है। ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं इनको इंपेरेटिव में बनाना है, प्लस इसका ऑडियो करना है घर पे, ये भी तरीका है। ठीक है, इसका लेसन का बचा हुआ ऑडियो करोगे और इंपेरेटिव वाला जो इसमें बच गया है वो करके आओगे। ये आपका होमवर्क है। ओंट